أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. آپ ایک آدمی سے مل لیتے ہیں تو وہ آدمی آپ کو نہیں چھوڑتا نہ آپ اسے چھوڑتے ہیں. آپ جانی پہچانی شخصیت ہیں. امید ہے کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ آپ کو ریسنٹلی گورنمنٹ جانی جائے گی کیونکہ آلریڈی ہم اوورسی پاکستانی کی جو باتیں وہ کر چکے ہیں اور یہ ایک موجود ہے کہ پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی کا کنٹریبیوشن عیاں ہو رہا ہے. کی قلت کے تحت آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پاس 11 احباب ہیں. ممکن ہے کچھ اور دوست بھی چاہتے ہوں گے. ہم نے اور 2 منٹ تک محدود آپ رہیں گے. لوگ ہیں جنہیں ہمیشہ ایڈوانٹیج ہوتی ہے جو وہ ہاؤس آف لارڈ میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کئی گھنٹے ہمارے دوست ہیں. اور آپ کو بتاتے چلوں کہ یو کے پی سی آئی سی کے ہمارے سابقہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں رضا صاحب اور ان اسٹیج پہ تشریف لائے اور آپ کچھ کہنا چاہیں تو پوچھ لیں. تو مسلم جنرل سیکرٹری تھے جو کہ آج میری ذمہ داری کوشش کرتا ہوں بائی ان کی انکریجمنٹ سے اور ان کی حوصلہ افزائی سے میں نے یو کے پی سی آئی میں اور زیادہ محنت اور کام کرنا شروع کیا. اور یہی سوچ رہا تھا کہ جب یہ بات شروع ہوئی کہ شاہ صاحب نے یو کے پی سی آئی میں مجھے کھینچا انکریج کیا ابھی آگے اس سے بڑی ذمہ داری میں چلتا تھا شاید ادھر بھی کہ مجھے ادھر بھی کھینچ لیں. تو بہت بہت مبارک ہو انیس فاؤنڈیشن کی جو ویب سائٹ پہ فگرس تو اس میں مجھے آپ کا نام بھی نظر آیا اور مجھے بڑی دیکھ کے خوشی ہوئی اور بلکہ میں آپ کی تھوڑا سا اس میں پروفائل بھی آپ کا لگایا. بہت شکریہ. تھینک یو. رضا صاحب ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خلاف خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں. میں کچھ بھی رضا صاحب کی تعریف کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور میں انہوں نے مولانا صاحب نے فرمایا کہ جو انہیں کچھ چند لمحوں سے جانتا ہے ویسے لگتا ہے برسوں سے جانتا ہوں. میں ان کو برسوں سے وہ یہ کہ وہ سچی بات کرے اور اس پہ عمل کرے. نو ریٹریٹ, ایکسکیوزز نو ایکسکیوزز. تو میں آپ یہ جنرل سیکرٹری تھے اور میں پریزیڈنٹ تھا. And actually, I still feel extremely privileged to be in that position. And we did work. President Secretary اور امید ہے اس سال علی صاحب نے کیا پریزیڈنٹ کا اور یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. اور اس کے بعد ان کی محنت اور کمیونٹی سے محبت اور ملک سے محبت کی وجہ سے پریزیڈنٹ اور کوئی پریزیڈنٹ ریکگنیشن ایوارڈ جو انہوں نے محنت کی ہے, میں ان سب کی ان کو مبارکباد دیتا ہوں. کون دل سے کر رہا ہے اور کون زبان سے کر رہا ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا رہتا ہوں, وہ یہ رہے ہیں اور میرے ساتھ کام بھی کیا ہے. ہم دونوں بھائیوں نے مل کے کام کیا ہے اور ان کے تعلقات ایسے ہیں کہ ہم ایک خاندان سے. صحیح بات ہے کہ مجھے کوئی اپنے سکے بھائی کوئی بات کہیں میں کبھی کچھ ان کی باتیں سنتا ہوں, کچھ نہیں سنتا ہوں. مگر شاہ صاحب جو کہیں اور آپ کو ترقی دے اور ہم اس طرح آپ کے سر پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ چیمبر کے ڈائریکٹر نہیں تھے, چیمبر کے ممبر تھے اور جتنی ایکٹر اور محنت سے یہ چیمبر کے لیے کام کر رہے تھے ڈائریکٹر بھی نہیں ہوتا. ان کے دل کی جو منزل انہوں نے 5 سال میں طے کی ہے وہ مثالی ہے. اصل دیکھنا ہوتا ہے کمانا کتنے عرصے میں کہاں پہنچے, یہ واقعی مثال ہے. اور یہ ختم نہیں ہوئی, اب اسٹارٹ ہوئی ہے. وہ جو ہماری روایتی رکھ رکھاؤ ہے, چھوٹوں بڑوں کی عزت, سب سے خلوص میں پیش آنا, جو کا بہت کم ملتا ہے. پاکستان میں بھی بہت کم ہے. بات جو ہے یہ سب اسپیکر جو ہے وہ کہہ چکے ہیں اور باقی جو بھی آئیں گے وہ یہی کہیں گے کہ رضا بھائی ایک بہت اچھے انسان ہیں جو ایک بار ان کو ملتا ہے دوبارہ ملنے کی خواہش رکھتا ہے. OPF Overseas Pakistani Foundation Board of Directors کے OPF to next level. جب
रजा became a director of UK Pakistan Chamber of Commerce. मैं सब बातों का गवाह हूँ कि चैम्बर में पिछले 5 साल से जितनी इस इंसान ने कोशिश की है लोगों को जोड़ के रखने की, किसी ने नहीं। जो जितने भी डायरेक्टर्स हैं ये अपनी जेब से पैसे डालते हैं, 2,000 5,000 पाउंड, और फिर ये डिग्निटरी को बुलाते हैं, हमको बताते हैं, ये अपना खर्च करते हैं, कोई किधर से फंडिंग नहीं आती। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ लव द कंट्री करते हैं। इंसान यहाँ पर आता है, किसी पार्टी का आदमी नहीं आया। यार शाबाश, कोई फर्क मुझे यहाँ नजर नहीं आया। ये अफसोस की बात है। मैं भी कर रहा हूँ। एक चीज और मैं कहूंगा कमर रजा साहब के बारे में, जो कि मैंने खुद फील की और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। साल में प्रेसिडेंट बनने के बाद जबकि वो प्रेसिडेंट नहीं है, तो उससे भी ज्यादा मेहनत से, और ये है कि उससे भी ज्यादा एफर्ट्स इन्होंने यूकेपीसीसीआई में लगाई है। एंड ओपीएफ से जो ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो है, जो चीजें जो कि एक अरसे से ओवरसीज पाकिस्तानीज की मुश्किलात हल नहीं हो रही, आई एम श्योर इनके जाने से overseas Pakistanis will be properly represented in OPF. अल्लाह ने आपको इसी तरह का फरमाया। हमारे गाइस स्पीकर जनाब लॉर्ड कुर्बान साहब ने आपसे बड़ा शुक्रिया। मैं तो इससे ज्यादा यकीन नहीं। The first time I ever heard the name of OPF वो था 1996। हम यहाँ से एक डेलीगेशन के साथ गए तो हमें प्रेजेंटेशन दी गई इस्लामाबाद में। वो इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन थी तो हम सोच रहे थे कि यार हम किस दुनिया में रहते हैं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी सहूलतें हैं इसमें, बच्चों की तालीम के मामलात हों, हाउसिंग हो, और बहुत सारी चीजें वो ऑफर करती है ओवरसीज पाकिस्तानी को। तो ये तो बरतानिया में भी यकीनन लॉन्च की जाएगी। उसके बाद दोबारा हम 1999 में उसी तरह के वफद में गए, अगेन हमें उसी तरह की एक प्रेसिडेंट ने हमसे मुलाकात की। तो पहला क्वेश्चन, इससे पहले कि वो मुझे बताते कि ओपीएफ क्या है, मैंने कहा भाई मेरे इल्म में ओवरसीज पाकिस्तानी की सबसे बड़ी तादाद जो है वो यूके में है, किसी भी एक मुल्क में यूके में सबसे ज्यादा है। तो वहां ओपीएफ डजंट एग्जिस्ट। खान साहब इधर उधर के दौर मैंने कहा कि भाई आप अगर वहां से आए हैं तो यहां किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि ओपीएफ को प्रमोट करे। अभी मैंने कहा ही था तो पाकिस्तान हाई कमीशन के एक मोतबर शख्सियत, पता नहीं अभी वो यहाँ है या नहीं है, मेरे पास ही खड़े थे तो मेरा बाजू पकड़कर कहने लगे रहने दे, ये मेरी जिम्मेदारी थी, असल में पहले कुछ नहीं कर सका, आप कुछ करेंगे। उनकी जो डेडिकेशन वाले से बात कर सके। सच्ची बात यह है, अगर मैं थोड़े अल्फाज में से ये कहूं कि ये मेरे भाई हैं, एंड आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई लव हिम फॉर दैट। क्योंकि एक तो ये जो जितनी भी बातें दोस्तों ने की हैं मैं उनसे एग्री करता हूं। एक बात शायद किसी ने की हो, ही इज अ ग्रेट होस्ट। इनके घर पे अगर जब ये दावत करते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे दोस्तों ने इनके घर की हॉस्पिटैलिटी जो है वो आई एम कॉन्फिडेंट कि जिस जॉब में, जिस पोजीशन में आपको एलिवेट किया गया है, इंशाल्लाह यू विल डू जस्टिस। मेरे छोटे भाई, हैंडसम भाई लॉर्ड कुर्बान साहब ने मेरी तकरीर का थंडर जो है वो चुरा लिया है। मैं से वो आई विल कीप कमिंग बैक टू दैट एंड उनके जो चैलेंजेस है। दूसरी बात ओपीएफ, और सच्ची बात यह है कि आई एसोसिएट एवरी वर्ड जो लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब ने ओपीएफ के हवाले से बात की, आपको भी पता है। बल्कि एक मेरा गिला ओपीएफ के हवाले से ये है कि काफी अरसा पहले, तकरीबन आज से 25 साल पहले, ओपीएफ ने अरबों रुपए का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मीरपुर में शुरू किया था, और वो मीरपुर का प्रोजेक्ट बरतानिया के लोगों ने
करोड़ों रुपए अरबों रुपए वो उस पे लगाए और आज तक वहां पे एक मकान भी नहीं बना। तो लोगों ने लुट लुट के खाया है मीरपुर को, ओपीएफ ने भी खाया, लेकिन उन्होंने दिया कुछ नहीं, लोगों ने कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा भी दिया। तो शाह जी ये आपके लिए, उन्होंने कहा कि ओपीएफ विजिट करें, मैंने कहा ये विजिट करने हैं। मैं पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करता हूं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब का एहतराम करता हूं, लेकिन जो 63C है उसका जो मुझे इल्म है, मैं लॉयर नहीं हूं, वो ये है कि ओवरसीज जो ड्यूल नेशनल वो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो पार्लियामेंट में वो इलेक्ट होके नहीं जा सकते, इसमें कोई इतराज नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस हो या कोई भी जस्टिस हो या पाकिस्तानी कोई भी हो या नॉन पाकिस्तानी हो, उसको हमारी लॉयल्टी को क्वेश्चनिंग करने का कोई हक नहीं। मलका के ओथ के हवाले से कहा है, हमने मलका का ओथ लेकर भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, मियां नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और इनके हर एक के काम किए हैं, लड़े हैं उनके लिए, और दूसरे जो लीडरान हैं, बल्कि मैं फखर से कह सकता हूं, मैं तो चीफ जस्टिस साहब के लिए उस वक्त स्टैंड लेके मुशर्रफ के खिलाफ उनके घर गया हूं, जब मार्शल उन्होंने वो उनके घर के आगे पीछे सिक्योरिटी बिठाई हुई थी कि वहां पे नहीं जा सकते। अगर उस वक्त जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब आपने मेरी लॉयल्टी को क्वेश्चन नहीं किया, जब मैं आपको सपोर्ट करता हूं, आज मेरी कम्युनिटी की लॉयल्टी को बिल्कुल चाहिए, क्योंकि और वो ये है कि देखिए आप, बिकॉज यू विल बी रिप्रेजेंटिंग अस इन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन या गवर्नमेंट का जो महकमा है, और फिर आप पाकिस्तान जाएंगे, आपसे लोग पूछेंगे कि लोगों के क्या फीलिंग है। मुझे डर यह है कि जो लॉन्ग टर्म हमारी रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, वो मुझे डर यह है कि उसको इफेक्ट ना हो, वो कमजोर ना हो, और वो कमजोर हो सकती है कि आज अगर जिस तरह किसी ने अभी फरमाया था कि ये एक प्रेसिडेंट बन गया है, चीफ जस्टिस को लोग कोट कर सकते हैं कि भाई आपकी लॉयल्टी को तो शक है। अगर ये लॉयल्टी पे शक है तो फिर जो मेरी प्रॉपर्टी है वहां पे, और अरबों खरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी है, कल कोई सिर फिरा वहां पे जाता है और वो कहता है जी मैं इस पे कब्जा करूंगा, आप तो लॉयली ने पाकिस्तान से, आप तो आपकी प्रॉपर्टी लिए जो है वो इनकरेज करेंगे। जो भी प्राइम मिनिस्टर आए, खाने जितने भी खिलाएं, यहाँ पे तकरीर कितनी भी करें और आपको कितना भी सफीर पाकिस्तान के, फिर उसका मकसद कोई नहीं रहेगा। फिर आपने 20 अपने के लिए की हैं, एक ओवरसीज पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए करें और उसको रिप्लेस करें और केसेस ना करने पड़े, और हर पुलिस वाला, हर थानेदार जो है वो वहां पे थाने से थाने रिश्वत के कोई चक्कर में ना डाले, फिर कम से कम एसपी लेवल से कोई नीचे लेवल का कोई अफसर जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी को तंग भी ना करे, सिर्फ हायर लेवल के लोग जो है वो उनके साथ कम्युनिकेट करें जिस तरह हिंदुस्तान में। बात बहुत आपकी मोहब्बत है, आप सबका एतमाद है और आपका साथ है, तो ये सब कुछ है। इससे पहले कि मैं बकायदा तकरीर का, पाकिस्तान की बात है, अगर आज से 65 साल पीछे जाए, जब 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया, तो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई। 1 करोड़ से ज्यादा लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए, और आलम यह था पाकिस्तान का कि अगर हमने पेपर नथी करने हो तो हमें कांटों से काम चला रहे थे। तो उनका एक अजब अंदाज में इस्तकबाल किया गया। जब जनरल प्रेसिडेंट अयूब गए यूनाइटेड स्टेट्स, आज भी आपको मैं जरूर कहूंगा यूट्यूब पे देखिएगा, आपको फख्र होगा पाकिस्तानी कहलवाने में कि किस तरीके से जॉन एफ कैनेडी, जो मशहूर प्रेसिडेंट गुजरे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, किस तरह से उन्होंने
हमारे प्रेसिडेंट का इस्तकबाल किया। जहाज की 2 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के उन्होंने उनसे हाथ मिलाया, उनको रिसीव किया, और जो यूनाइटेड स्टेट की गलियों सड़कों पे जिस तरह से लोगों ने वलियाना इस्तकबाल किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है कि हम फिर यूनाइटेड हों, मेहनत करें, कोशिश करें और ये ठान लें कि हमने वापस इंशाअल्लाह दुनिया की कामयाब तरीन कौम बनना है, तो ना बन सके। ओपीएफ को जदोजहद की, लाड साहब के इजाजत से मैं जो सच है वो सच कहना चाहिए। डॉक्टर फारूक सत्तार, उनसे इंटरेक्शन हुआ एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी के हैसियत से। उनके प्रोग्राम 2 हमने इनेकाद कराए। उसके नतीजे में एक दिन मुझे टेलीफोन कॉल मौसूल हुई कि आपकी सीवी चाहिए। तो जो मेरी मुख्तसर सीवी थी, मैंने अपनी सीवी फॉरवर्ड की वहाँ पे। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक दोस्त है मेरे, उन्होंने मुझे 4 जनवरी को फ़ोन करके बताया जी कि मुबारक हो आपको जी। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, किस बात की मुबारक? तो उन्होंने बताया जी इस तरह से आपकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो मुझे फिर भी मजाक ही लगा। 8 तारीख को मुझे ये नोटिफिकेशन मौसूल हुआ और उसके बाद एक मीटिंग में अटेंड कर चुका हूँ। वाकई मुझे भी हैरानगी हुई जब मैंने वहां जाके देखा कि ओपीएफ एक बहुत ही अहम अदारा है और उसका काम सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों की वेलफेयर है। सफारशी लोग और जिसका जो मनसब है, जिसका जो फर्ज है, वो ना फर्ज को जानता है ना अपने मनसब को जानता है। तो इसलिए आप तक ओपीएफ नहीं पहुंच सका। तो अब अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने मैं अपने आप को ज्यादा कुछ समझता नहीं हूं, मगर मैं इतना समझता हूं कि अल्लाह रहूंगा नहीं, और अगर मैं रहूंगा तो मैं डेफिनेटली आपके लिए काम करूंगा। वहां पर मैं आपका नुमाइंदा हूं, आपका वकील हूं, और इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी रही तो मैं अपने फर्ज में कोई कोताही नहीं करूंगा। रुकावट है, यहां मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं लंबी तकरीर नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने पहले काफी उसके लिए माफी का तलबगार। प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सका है समहाउ। इस दफा मैं उसकी मज़ीद तफसीलात दूंगा, जो मैं आपको वहां से इन डिटेल जो एक प्रॉपर प्रोसीजर है वहां से लेटर आएगा आपको, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कि इस वक्त हम वो जो मीरपुर वाली हमारा हाउसिंग कॉलोनी है वो किस। मैं ये बिलीव करता हूँ, कमर रजा साहब के बारे में क्या करूँ, गांव से शुरू करूँ, काम इसके एंड करूँ। जब से आप मिले हैं, जब से हमारी दोस्ती हुई, मैं समझता हूँ कि आप मेरे तीसरे भाई हैं। 2 भाई पहले हैं और आप एक हैं, तीसरे हैं। और एक आज आप सब दोस्तों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी मदर 91 ईयर ओल्ड अभी पाकिस्तान से आई है। तो जब शाह साहब को मिली और दोनों बेटों को पकड़ कर कहा, तो मुझे कहती कि बेटा हमेशा दोनों भाई एक साथ रहना, ये गवाह है। तो यू जस्ट इमेजिन कि 91 ईयर ओल्ड मदर जो गांव से उठकर आई हैं, उनकी विजन देखें। और मैं समझता हूं कि ये शाह साहब के पास को किधर से नहीं है जो हमें नहीं बताते। दिस इज वेरी गुड, सेलेक्ट किया है। मैं इसके लाइट में एक बात करना चाहता हूं कि मिड 80s में मैं पाकिस्तान गया और मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे थे। उस वक्त कोई CIA का हमला भी हमें इतना नहीं जानता था, कुछ पता ही नहीं था। गांव से उठकर आना और भाग कर, मैं थोड़ा लेट भी था, और जब अंदर गया तो पता चला कि मैं बाकी लेट हूँ। तो उन्होंने कहा जी आपने ये फॉर्म फिल करने हैं, वो करना है, ये करना है, यहाँ आपने वो एयरपोर्ट। तो एक बात कुछ हमारे दोस्तों ने ये कही थी पाकिस्तान हाई कमीशन के हवाले से, पाकिस्तान राब्ता नहीं कर पाया।